برسوں پرانی بات ہے۔ بغداد کے شہر بصرہ میں ایک معمولی سا تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتا اور کوشش کرتا کہ بچوں کے لیے حلال رزق لے کر جائے۔ اس نے کئی سال نہایت جان فشانی سے محنت کی، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس ایک چھوٹی سی دکان کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی بھی جمع پونجی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اس فانی دنیا میں 4 دن زندگی گزار لی، برا وقت گزار لیا اور کسی کا محتاج بھی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ وہ ایسے لوگوں سے بہتر ہے جو حرام کی کمائی سے مال و اسباب اکٹھا کرتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک دن اس تاجر نے بسم اللہ کر کے اپنی دکان کا دروازہ کھولا تو اسے اپنا ایک پرانا دوست دکھائی دیا جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ دوست نے اس سے حال احوال دریافت کیا اور اس کے کاروبار کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حلال کا لقمہ نصیب ہو رہا ہے۔ اس تاجر کے دوست نے پھر اپنا ماجرا بیان کیا اور پھر اپنی چادر میں چھپائی ہوئی تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور پھر اس سے کہنے لگا، میرے دوست، میں ایک سفر پر جا رہا ہوں۔ اس تھیلی میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ میری واپسی تک یہ تھیلی امانتاً رکھ لو، مجھے امید ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ تاجر نے اپنے دوست سے کہا، اے دوست، یہ تھیلی میرے حوالے کر دو اور بے فکر ہو کر اپنے سفر پر نکل جاؤ، میں تمہاری واپسی تک اپنی جان کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ دوست نے تھیلی تاجر کے حوالے کر دی اور خدا حافظ کہہ کر اپنے راستے پر چل دیا۔ تاجر نے اپنے دوست کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد 2-3 نوجوان اس کی دکان کے سامنے آئے۔ ان نوجوانوں نے انتہائی قیمتی اور عمدہ لباس پہن رکھے تھے اور ان کے چہرے سے غرور اور تکبر کے آثار نمایاں تھے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر تاجر کے پاس آئے اور کہکا لگا کر باتیں کرنے لگے اور تاجر سے فرمائش کرنے لگے کہ کوئی انتہائی قیمتی اور عمدہ کپڑا دکھاؤ۔ تاجر نے اپنی دکان سے ریشمی کپڑا اٹھایا اور ان کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ کپڑا ان نوجوانوں کو پسند آ گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کپڑا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تم یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو؟ ہم صبح سے بازار میں گھوم رہے ہیں، لیکن ہمیں کہیں بھی اس طرح کا کپڑا دکھائی نہیں دیا۔ تاجر نے کہا، یہ کپڑا پرانے ذخیرے سے میرے پاس موجود ہے۔ میرے پاس جو گاہک آتے ہیں اس کی اتنی زیادہ قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کپڑا بچ گیا ہے اور ابھی تک فروخت نہیں ہوا۔ ان نوجوانوں نے وہ کپڑا اٹھایا اور پیسے دیے بغیر چل پڑے۔ تاجر یہ دیکھ کر حیران ہوا اور پھر ان کے پیچھے چل دیا اور انہیں پکار کر کہنے لگا، مجھے اس کپڑے کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، تم کل خلیفہ کے دربار میں آ جانا، ہم خلیفہ کے مشیر ہیں، تم وہاں آ کر ہمارا پتہ معلوم کرنا اور کپڑے کی قیمت لے جانا۔ تاجر یہ باتیں سن کر حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ان لڑکوں سے کپڑے کی قیمت وصول نہیں کر پائے گا۔ خیر، وہ اپنی دکان چھوڑ کر ان لڑکوں کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ واپس اپنی دکان پر آ گیا اور اپنے دوست کی تھیلی اٹھا کر گھر میں جا کر ایک جگہ چھپا دی۔ اگلے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر خلیفہ کے دربار میں چل دیا تاکہ وہ اپنے کپڑے کی قیمت وصول کر سکے۔ لیکن یہ سادہ لو تاجر اصل حقیقت سے بے خبر تھا اور وہ خوش فہمی میں تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں ہی اپنے کپڑے کی قیمت وصول کر لے گا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ خلیفہ کے دربار پر پہنچا تو وہاں پر پہرے دار کھڑے تھے۔ اس نے پہرے داروں کو جا کر ان نوجوانوں کی نشانی بتائی جو اس سے کپڑا خرید کر لے گئے تھے۔ پہرے داروں نے جب تاجر کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ وہ کل آ کر واپسی جواب لے جائے۔ دکاندار تو اس سوچ میں تھا کہ وہ بہت جلد ہی اپنی اچھی قیمت وصول کر کے چلا جائے گا، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ اگلے دن پھر وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو اسے ایک نیک دل پہرے دار ایک کونے میں لے گیا اور اس سے کہنے لگا، اے تاجر، تم کتنے سادہ لو ہو۔ خلیفہ کے مشیروں نے ہمیں کہا ہے اگر کوئی اس شکل کا بندہ اپنے پیسے لینے کے لیے آئے تو کل کا کہہ کر ٹال دینا، یہاں تک کہ وہ چکر لگا لگا کر تھک جائے اور پھر وہ اپنی رقم کو بھول جائے گا۔ اس لیے تم خود سوچو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں تمہاری رقم ملے گی، اس لیے تم زیادہ سردردی مول نہ لو اور یہاں آ کر اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے اپنی دکان پر توجہ دو۔ اس تاجر نے پہرے دار سے کہا، میں نے وہ نہ تو کپڑا چرایا تھا، نہ ہی وہ حرام کی کمائی سے تھا، اور نہ ہی میں اپنا کام چھوڑ کر روز روز آ سکتا ہوں۔ میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ مشیر جیسے بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ اگر انہوں نے میری رقم نہ دی
तो मैं सीधा खलीफा के पास जाऊंगा। जिस पर पहरेदार ने कहा, मैंने हकीकत तुम पर वाज़िया कर दी है, अब तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दोबारा कहूंगा कि अगर तुम अपनी खुशी और सलामती चाहते हो तो रकम को भूल जाओ। दुकानदार को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। इस दिन के बाद वो 2-3 बार और खलीफा के दरबार की तरफ गया और उन नौजवानों का पता मालूम करना चाहा, लेकिन उसे कुछ भी ना बताया गया। लेकिन वो फिर भी नाउमीद ना हुआ। उसे यही उम्मीद थी कि वो कभी ना कभी उन नौजवानों को तलाश कर लेगा और उनसे अपनी रकम तलब करेगा। इत्तेफाक से एक दिन इसने अपनी दुकान से छुट्टी की हुई थी। उसने बाजार में देखा कि वही नौजवान घोड़ों पर सवार होकर तेजी से गुजर रहे हैं। ताजर ने उन्हें रोककर सलाम किया और मिजाज पुरसी के बाद अपनी रकम तलब की। इन नौजवानों ने जब ताजर का मुतालबा सुना तो कहके लगाकर हंसने लगे और उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, तुम क्या पागल हो गए हो? कौन सा कपड़ा और कैसी रकम? ताजर ने अपनी मासूमियत से पूरा वाकया सुनाया, अपनी दुकान के बारे में बताया और वो दिन भी याद करवाया जब ये तीनों उससे कपड़ा लेकर गए थे। इनमें से दूसरा नौजवान बोला, क्या हम तुम्हारे मामूली से कपड़े के मोहताज हैं? अगर हमें कपड़े की ज़रूरत हो तो हम हुक्म देते हैं कि हमारे लिए बड़े बड़े मुल्कों से कपड़ा मंगवाया जाए। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि बाजार जाएं और तुम्हारे जैसे मामूली ताजर के पास कपड़ा खरीदते हुए अपना वक्त ज़ाया करें। उन्होंने इतना कहा और घोड़ों की लगाम खींचकर आगे की तरफ बढ़ गए। ताजर ने जब देखा कि उसकी रकम डूब रही है और उस पर झूठ और खयानत का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उसने आगे बढ़कर एक नौजवान के घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और उसे जमीन पर खींच लिया और कुछ ही देर में दोनों आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। दूसरे दोनों नौजवानों ने जब देखा कि ताजर ने उनके साथी को नीचे उतार लिया है तो वो भी दोनों घोड़े से उतर आए। तो उन तीनों ने मिलकर ताजर की बेरहमी से पिटाई की, लेकिन वो ताजर भी शदीद गुस्से में था। उसने भी 2 लोगों के कपड़े फाड़ कर रख दिए और उनमें से एक का सर और चेहरा लहूलुहान कर दिया। इस झगड़े के बाद तीनों नौजवान घोड़े पर सवार होकर जल्दी से भाग गए। वो ताजर जख्मी हालत में था और वो इसी हालत में अपने घर को वापस लौटा। ताजर को इस हालत में देखकर उसके बीवी और बच्चे परेशान हो गए और इससे माजरा दरियाफ्त करने लगे कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया है। ताजर ने पूरा वाकया बयान किया और कहने लगा, अगरचे मैं जख्मी हूँ लेकिन मैं इस बात पर खुश हूँ कि मैंने खलीफा के मुशीरों का मुकाबला किया है। ताजर का बदन जख्मों से चूर था, इसलिए वो कुछ दिन दुकान पर ना गया और अपने घर पर ही रहा और घर पर ही जख्मों की मरहम पट्टी करता रहा। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत से काम लिया और अपनी दुकान पर चला गया। इसने अपनी दुकान खोली और काम में मशगूल हो गया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि इसने देखा कि इसकी दुकान पर 2 कोतवाल खड़े हैं। ताजर ने उनसे पूछा कि तुम किस लिए आए हो? उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अभी ताजर के जख्म भी नहीं भरे थे कि वो उसे लेकर थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर उसने देखा कि सिपाही उसे घूर रहे हैं। ताजर ने दरोगा से पूछा, जनाबे अली मुझे किस लिए बुलाया गया है? दरोगा भड़क कर कहने लगा, ये कैसा सवाल है? कुछ दिन पहले तुम खलीफा के मुशीरों से उलझे हो और उन्हें कत्ल करने की कोशिश की है। तुमने ऐसे बाइज्जत लोगों से दस्त दराजी करने की जुर्रत कैसे की? वो ताजर कहने लगा कि मैंने उनसे अपने कपड़े की कीमत तलब की थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैं अकेला था और वो 3 थे। उन्होंने मुझे मारा पीटा है, ना कि मैंने। दरोगा कहने लगा, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें नहीं मालूम कि वो खलीफा के मुशीर थे? क्या तुम अपना कपड़ा हदिया नहीं कर सकते थे? क्या खलीफा तुम्हारी हिफाजत की खातिर इतना भी हक नहीं रखता कि उसके मुशीर तुमसे एक मामूली सा कपड़ा ले सके? ताजर ने जब देखा कि उसे ही मुजरिम ठहराया जा रहा है तो वो कहने लगा, जनाबे वाली वो लोग कपड़ा खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, ना कि खलीफा के लिए तोहफा लेने। मैंने कई दिन खलीफा के दरबार के चक्कर लगाए लेकिन मुझे कोई भी जवाब ना मिला और जब मैंने कई दिनों के बाद इन्हें देखा तो वो मुझसे कहने लगे, तुम क्या पागल हो गए हो? हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं खरीदा। क्या वो इस तरीके से हदिया ले सकते थे? और क्या मैंने अपनी रकम मांग कर बुरा किया है? दरोगा कहने लगा, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि खलीफा ने मुझे हुक्म दिया है कि चूंकि तुम उसके मुशीरों से उलझे हो, उनकी बेइज्जती की है, इसलिए तुम्हें इस जुर्म में कैद खाने में भेजा जाएगा और तुम्हारा मालो असबाब भी मुल्क के खजाने में जमा करवाया जाएगा ताकि किसी दूसरे शख्स को ऐसी जुर्रत ना हो और वो खलीफा और उसके मुशीरों की बेएहतरामी ना करे। ताजर ने जब ये हुक्म सुना तो उसकी दुनिया तारीक हो गई और करीब था कि वो गिर जाए
और उसकी रूह परवाज कर जाए। इतने में दरोगा कहने लगा, चूंकि तुम मस्कीन और सादा दिल हो, इसलिए मैं तुम्हें कैद खाने नहीं भेजता और खलीफा से मैं इसकी जवाबदही खुद कर लूंगा। लेकिन तुम्हारा मालो असबाब हर हाल में सरकार जब्त करेगी। तुम्हारी दुकान में जितना माल है अब इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए अब तुम अपने घर जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। ताजर गमगीन और दिल शिकस्ता था। उसकी हालत ऐसे थी जैसे कोई गधागर जमीन पर बैठा होता है। वो ऐसी शिकस्ता हालत में घर लौटा। वो इंसाफ से नाउमीद था। अगले दिन खलीफा के करिंदे आए और उसके सामने उसकी दुकान के अंदर जितना भी माल था वो सारा उठा कर ले गए और उसे उसकी दुकान के साथ तन्हा छोड़ गए। वो ताजर खाली हाथ रह गया था। वो कुछ देर अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और वो सोचने लगा कि चाहे जो भी हो जाए उसे कोई ना कोई काम तो करना ही है ताकि उसके बीवी बच्चे भूखे ना रहें। वो यही सोच रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे कि इतने में उसे अपने दोस्त की थैली याद आई, जो सफर पर जाने से पहले थैली इसके पास अमानत रखवा कर गया था। लेकिन फिर वो अपने आप से कहने लगा कि मेरे दोस्त को मुझ पर एतबार है कि मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस थैली से कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले लेता हूँ और इसे अपने कारोबार में लगा देता हूँ, और जब मेरी हालत बेहतर हो गई तो मैं अपने दोस्त की रकम इस थैली में रख दूंगा। ये सोचते ही वो घर पहुंचा और कोठरी का दरवाजा खोला जहां उसने थैली छुपा कर रखी हुई थी। लेकिन जब उसने वो थैली खोलने की कोशिश की तो अचानक उसका दिल कांपने लगा और फिर वो सोचने लगा कि मुझे कैसे मालूम है कि मेरा कारोबार ठीक हो जाएगा और मैं जल्द रकम इसमें वापस रख दूंगा। शायद ये रकम मेरे दोस्त की अपनी जायदाद ना हो और उसके पास भी किसी की अमानत हो। चाहे मेरा कारोबार ठीक हो भी जाए तो जो रकम मैं इस थैली से लूंगा मैं उसे उसकी जगह पर रख भी दिया तो क्या ऐसा काम करना दुरुस्त होगा? क्या ये काम अमानत में खयानत नहीं होगा? नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे बेहतर है कि मुझे दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अमानत में खयानत का इर्तिकाब करने से मेरी मुश्किल हल नहीं हो सकती। उस ताजर ने वो थैली उसी जगह वापस रख दी और फिर कोई दूसरा तरीका सोचने लगा। फिर वो अपने कुछ दोस्तों के पास गया और उनसे कर्ज लेकर कई किस्म का कपड़ा खरीदा और कई दिनों बाद बंद दुकान खोली और उसने वो कपड़ा लाकर दुकान पर रख दिया। उस ताजर को बहुत उम्मीद थी कि उसकी हालत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ ना दिया और उसे खदशा था कि वो अपने दोस्तों का कर्ज अदा नहीं कर सकेगा। उसके पास इतने ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे और घर का खर्च भी इसी दुकान से चलाना था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, लेकिन उसके दोस्त अच्छे थे। उन्होंने अपने कर्ज की वापसी का मुतालबा ना किया, लेकिन कुछ दोस्तों ने बेसब्री का इजहार किया और हर रोज उसकी दुकान के चक्कर लगाते और अपने पैसों का सख्ती से मुतालबा करते। लेकिन ताजर शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता, मगर ये मामला ज्यादा देर ना चल सका। दुकानदार सोचने लगा कि अब वो कर्ज खाओं का सामना नहीं कर सकता और ना ही उनसे मजीद मोहलत मांग सकता है। इसलिए उसने इरादा किया कि वो चंद दिन अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि वो कर्ज खाओं के मुतालबे से कुछ रोज बच सके। फिर किसी रात चिराग की मदम रोशनी में दुकान से अपना सामान उठाकर ले जाएगा। उस ताजर की एक शहर से बाहर चक्की बांध से जान पहचान थी जो इसके बाप का दोस्त था। वो उसकी तलाश में चल पड़ा और उसे अपनी जिंदगी का पूरा किस्सा सुनाया। उसने चक्की बांध से दरखास्त की कि वो कुछ अरसा तक उसके पास मजदूरी करेगा। जब चक्की बांध ने ताजर की बातें सुनी तो उससे कहने लगा, मुझे कोई मसला नहीं है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ पर मजदूरी कर सकते हो। ताजर के पास इज्जत और हलाल का लुक्मा हासिल करने के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो कहने लगा, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। अगरचे चंद दिन सख्त होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इस काम का आदी हो जाऊंगा। ताजर कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, उम्मीद है जल्द मेरे लिए आसानी हो जाएगी और मैं अपने असली काम की तरफ वापस लौट जाऊंगा। उसी दिन ताजर वहां पर काम करने लगा। इससे पहले वो ऐसा सख्त काम करने का आदी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो खुश था कि वो अल्लाह के बंदों के सामने बेइज्जत होने से बच गया। वो ताजर अब चक्की का मजदूर बन चुका था। वो कुछ दिन वहां पर काम करता रहा और कर्ज खाओं के मुतालबात से बचा रहा। अब वो रात को थका हारा अपने बीवी बच्चों के पास लौटता, लेकिन इत्तेफाक से जब वो एक दिन इंतहाई मेहनत से काम कर रहा था तो उसे चक्की के सामने शिकवा शिकायत की आवाजें सुनाई दी। वो तेजी से बाहर निकला। बाहर उसके 2-3 दोस्त खड़े थे जो उससे अपने कर्ज का मुतालबा कर रहे थे। वो चाहते थे कि उसे शहर के काजी की अदालत में ले जाएं। ताजर ने उन्हें देखकर कहा
अल्लाह मेरी हालत को बेहतर जानता है। मैं तुम्हारे ही कर्ज की अदायगी के लिए ये सख्त काम कर रहा हूँ। उनमें से एक कहने लगा, अब तुम हमसे बहस करना चाहते हो? तुम तो कर्ज लेकर गायब हो चुके हो और दुकान भी बंद कर रखी है। क्या तुम समझते हो कि तुम हमारे शिकंजे से निकल जाओगे? अब हम तुम्हें 2-3 दिन की मोहलत देते हैं। तुम हमारा कर्ज अदा कर दो, वरना जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये बात सुनकर ताजर की हालत दोबारा से खराब हो गई, लेकिन फिर भी उसने हौसला रखा और बदस्तूर चक्की पर काम करता रहा। और जब रात को घर लौटता तो इंतहाई फरसुदा और परेशान होता। उसे मालूम था कि वो लोग दोबारा अपना कर्ज वसूल करने के लिए वहां लौट आएंगे और उसे लोगों के सामने जलीलो रुसवा करेंगे और गली कूचों में खींचते हुए काजी के पास ले जाएंगे। बीवी ने अपने शौहर की बुरी हालत देखी तो उससे कहने लगी, क्या हम इससे भी ज्यादा मजबूर और तंग हो जाएंगे? इसलिए बेहतर है आज रात तुम वो थैली खोलो और अपनी जरूरत के मुताबिक वहां से रकम निकाल लो। इस ख़यानत से हम पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ताजर पहले से ही परेशान था। उसने धड़कते हुए दिल से कहा, नहीं नहीं, मैं उस अमानत में ख़यानत नहीं करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि वो मेरी मुश्किल को आसान करे। मैंने उसकी रजामंदी के लिए यह अमानत कबूल की है और अब मैं अमानत में ख़यानत नहीं करूंगा। वो रात ताजर ने कैसे गुजारी वो वही जानता था या उसका खुदा। और जब सुबह हुई तो उसके लिए घर से निकलने की हिम्मत ना थी। उसके जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अभी वो कर्ज खा आएंगे और नहायत सख्ती से उससे कर्ज का मुतालबा करेंगे। वो इन्हीं ख्यालों में गर्क था कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर वो चौंक उठा और उसके दिल में डर पैदा हो गया कि यकीनन कोई ना कोई कर्ज खा उसके दरवाजे पर आ गया है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस अजनबी ने ताजिर को सलाम किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूँ। उसने मुझे पैगाम भेजा है कि वो जो अमानत आपके हवाले करके गया है उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें जितनी रकम की भी ज़रूरत हो इससे निकाल लो और अगर इसमें से कुछ बच जाए तो अल्लाह की राह में खर्च कर देना। ताजिर को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन कैसे कर लूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें मेरे दोस्त ने भेजा है? उस अजनबी ने उसे एक खत दिखाया और कहने लगा कि ये खत तुम्हारे दोस्त का है और इसमें थैली की निशानी भी दर्ज है। ताजर ने जो ही थैली की निशानी और खत देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि उसने सब्र किया और अमानत में ख़यानत नहीं की। इस दिन के बाद ताजर की जिंदगी के हालात बदल गए। इसने सब लोगों का कर्ज अदा कर दिया और इसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा और बाजार के बाकी ताजर भी इसकी इज्जत और एहतराम करने लगे और इसने कई साल इसी बाजार में इंतहाई वकार से जिंदगी बसर की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसकी मुश्किलात इस दुनिया से ख़त्म करता है बल्कि आखिरत में भी उसके लिए आसानी पैदा करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।